नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 7 और उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक हमने कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.3 with question number 4. What is the question? Question which is the greater number? Let's see. The first question is 2 by 7 of 3 by 4. What is the meaning of 2 by 7 of 3 by 4? It means 3/4 का 2 by 7th part. How to find it? When we are multiplying 2 upon 7 multiply with 3 by 4, then we can get 2 by 7 of 3 by 4. Same here. 3 by 5th of 5 by 8. So here 3 by 5th multiply with 5 upon 8. Whenever we multiply the two fraction numbers, at that time the multiplication of numerator with the numerator and denominator with denominator. So we can multiply 2 multiply with 3 upon 7 multiply with 4, or 3 multiply with 5 upon 5 multiply with 8. Now you can see that 2 2s are 4 and 5 cut. Now so we can get 3 upon 40 or 3 upon 8. You can see that 3 upon 40 is less than 3 upon 8. तो कैसे डायरेक्टली हमने डिसाइड कर लिया कि 3 upon 8 is greater than 3 upon 40, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर चेंज है पर न्यूमरेटर दोनों सेम है। जब न्यूमरेटर सेम हो तभी जिस टर्म का डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी होगी। ये चीज मैंने अगले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी कोई दो फ्रैक्शन नंबर का कंपैरिजन करते हो उस समय जब भी अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम आए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा, और जब भी कोई दो फ्रैक्शन नंबर का कंपैरिजन करते हैं तब दोनों का न्यूमरेटर सेम हो लाइक दिस, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से 3 upon 8 is greater than 3 upon 40. Okay, let's see the second example. Like 2 by 1 by 2 of 6 upon 7 and 2 by 3 of 3 upon 7. So here 1 by 2 multiply 6 upon 7 or 2 by 3 multiply of 3 by 7. So here 2 3s are 6, here 3 3 cut. So 3 1s are 3 upon 7 or 2 1s are 2 upon 7. Now here see यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे 3 बड़े हैं, तो वी कैन राइट दैट 3 upon 7 is greater than 2 upon 7. दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंट देख लीजिए, यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वैसे उसका फ्रैक्शन नंबर बड़ा, और जब भी दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी मिलेगी। ये दो बात आप माइंड में रखना, ठीक है, लिख लीजिए। So here question number 5 is the Sally plants 4 sapling in the row. मतलब let's say here the plant 4 sapling और 4 sapling करते हैं। यहाँ पे एक प्लांट यहाँ पे उसने किया, दूसरा प्लांट ने किया, थर्ड वन एंड फोर्थ, एक रो में उसने 4 प्लांट sapling किया है। ठीक है, in a row in her garden the distance to adjacent sapling is 3 by 4. मतलब कोई भी प्लांट के प्रीवियस प्लांट और नेक्स्ट प्लांट के बीच में कितना गैप है,
3/4 मीटर, यहाँ पे गैप होगा 3/4 मीटर, ये गैप, ठीक है। दो प्लांट के बीच में 3/4 मीटर का गैप है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। अब यहाँ पे देखो, एक रो में उसने 4 प्लांटेशन किया, ठीक है, सही ने। अब टोटल 4 प्लांट उसने सैपलिंग किए हैं, तो गैप कितने मिलेंगे? गैप तो टोटल 3 ही मिलेगा, 1, 2 और 3। तो एक गैप का डिस्टेंस कितना है? 3/4। तो 3 गैप का डिस्टेंस कितना होगा? तो 3 गैप का डिस्टेंस होगा 3 × 3/4। सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3/4। Now multiply of the numerator with the numerator and denominator with denominator. So we can multiply 3 multiply with 3 upon 1 multiply with 4. So 3 3s are 9/4 meter. We can also be write this is the improper fraction. Whenever we get the improper fraction, we are converting improper to mixed fraction, like 9/4, 4 2s are 8, remainder is 1. This one is the quotient, this one is the remainder, and this one is the divider. So whenever we translate improper fraction to mixed fraction, we are getting Q R/D form. Quotient is the integer, then we can put the remainder as a numerator and divider as a denominator. So we can get the mixed fraction is 2 integer 1 and 4. So this one is the final answer. Okay, write down in your book. You can't write, you can't draw this picture, only you can write the question and answer. Okay, this will also be rough work. If you want to write in your book, then you can write that. So question number 6. The Lipika reads a book for 1 integer 3/4 hour every day. She reads the entire book in the 6th day. Then how many hours in all were required by her to read the book? It means Lipika every day, मतलब हर रोज 1 integer 3/4 hour बुक रीड करती है। तो उसने वो बुक डेली वो कितना रीडिंग करती थी? डेली रीडिंग 1 hour and 3/4 मिनट रीडिंग करती थी। तो पूरी बुक उन्हें कितने दिन में कंप्लीट करती? 6 डे के अंदर उसने पूरी बुक कंप्लीट कर ली थी। अब देखना ये है कि टोटल उसने कितने आवर्स बुक रीड करने में पसार किए। देखिए, the time taken by Lipika to read a book 1 integer 3/4 hour, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। बाद में she read entire book in the 6th day, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने पूरी बुक 6 डे में कंप्लीट कर ली है। Then so total hours taken by her to read the entire book. अब वो एक दिन में बुक कितनी रीड करती थी? तो एक दिन में वो 1 integer 3/4 hours तक एक दिन के लिए वो रीड करती थी। तो 6 दिन के लिए कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई विथ 6. But we can't multiply mixed fraction to any numbers. We can't multiply mixed fraction. First we convert mixed fraction to improper fraction. Then we can multiply with the any integer or fraction number. The first step is we are converting mixed fraction to improper fraction. 4 ones are 4 plus 3/4 multiply with 6. 4 plus 3
7/4 मल्टीप्लाई विथ 6। अब 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। जो नाउ 7 मल्टीप्लाई विथ 6/4 मल्टीप्लाई विथ 1। 7 6 are 42 42/4। So now this is the improper fraction, but we are converting to the improper fraction to mixed fraction। 42 divided by 4, 4 ones are 4, 0। यहाँ पे 2, तो 2 से पार्ट नहीं चलेगा तो we can put the 0 and after the point we can get the 0। So 4 5 are 20। ओके, अगर आप पॉइंट नहीं रख सकते तो पॉइंट से नहीं चलाना है तो we can put the 2। 10.5 or 10 integer 2/4 hour। Thus both answer will be right। ओके, आप improper fraction में लिखो या mixed fraction में लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। ठीक है, तो ये हुआ improper fraction और ये हुआ mixed fraction। ओके, thus लिपिका taken time for a entire book is 10 integer to half hour। Okay, write down। So, question number 7। One car runs 16 किलोमीटर using 1 liter of petrol। अब कोई कार में हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो 16 किलोमीटर तक चलती है। Then how much distance will it cover using 2 integer 3/4 liter petrol। अब इतना पेट्रोल हम कार में डालेंगे तो कितने किलोमीटर चलेगी। In a 1 liter of petrol, car cover distance is equal to how many kilometers? 16 kilometers। Then in 2 integer 3/4 liter of petrol, car cover distance is equal to, we are applying the cross multiplication here। So 2 integer 3/4 multiply with 16। But as per the previous example, we know that first we converting mixed fraction into improper fraction। So here 4 2s are 8, 8 plus 3/4 multiply with 16। 8 plus 3, 8 plus 3 become 11, 11 multiply with 16 divided by 4। Now 4 4s are 16। So now 11 multiply with the 4, it become 44 kilometer। So we can write here, thus the car will cover 44 kilometer। Write down in your favorite। So question number 8। Now provide the number in the box 2/3 multiply with which number, then we can get the 10/30।
30. Then you can easily assume that which number we will multiply here to get the 10. So 2 multiply with 5. 5 2s are 10. And which number we will multiply with the 3, then we can get 30. Of course 10. So 5 upon 10 is our answer. But the simplest form of the number obtained in box. अब बॉक्स में दिए गए नंबर का सिंपल फॉर्म हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं ना, 5 upon 10 is equal to 5 as it is. 5 multiply with 2, so 5 cancel, so we can get the 1/2. The answer will be 1/2. Okay. The next one, provide the number in the box such that 3/5 multiply with the which number, then we can get 24 upon 75. So we are assuming the separate numerator and denominator, then which value we will multiply with the 3, then we can get the 24. 7 3s are 21, 6 3s are 18, 8 3s are 24. So we can put the 8. Now, which value multiply with the 5? Then we can get the 75. So 15. 5 is a 75. Here, 8 upon 15. They have no any common factors in the numerator and denominator. So the given number is itself a simplest form. So we can put 8 upon 15 because of 8 का अगर आप फैक्टर निकालो तो 2 and 4 and 15 का फैक्टर निकालो तो 5 and 3. कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो कैंसल आउट हो, इसलिए वही नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा. ये थी एक्सरसाइज 2.3. एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो रही है. सब एग्जाम्पल आप अच्छे से बुक में लिख लेना बच्चों. और नेक्स्ट अब द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर हम पढ़ाएंगे. अभी लिख लीजिए. The new topic is division of fraction number. तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले हम थोड़ा रिवीजन की ओर देते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता था? फॉर एग्जांपल 8/3 प्लस 2/3 ऐसे कोई नंबर होता था. तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, कोई भी फ्रैक्शन नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता था, तो वी कैन टेक द डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर. हम न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते थे और कॉमन नंबर को एलसीएम की तरह ले लेते थे. तो क्या करते थे? 8 + 2 डिवाइड बाय 3. यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इज 3. वी कैन टेक. सो 8 + 2 इट बिकम 10/3. कोई दूसरा नंबर होता था 1/3 माइनस 2/7. अब यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है. तो क्या करेंगे? वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 7. 3 और 7 का एलसीएम निकलेगा 21. सो 1 मल्टीप्लाई विद 7, 3 मल्टीप्लाई विद 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 3, 7 मल्टीप्लाई विद 3. 7 1s are 7 upon 21 minus 2 3s are 6 upon 21. So now अब दोनों का डिनोमिनेटर कैसे हो गया? सेम हो गया. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब सब्ट्रैक्शन लेके 7 - 6 upon 21 इट बिकम 1 upon 21. तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के एग्जांपल्स प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कर लिया था. अब आगे बात बढ़ाते हैं.
अब बात है मल्टीप्लिकेशन की बात है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे फ्रैक्शन नंबर का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन नंबर इज 2/5 मल्टीप्लाई 3/4। इस तरह से कोई भी तो फ्रैक्शन नंबर होते थे, और फ्रैक्शन नंबर में हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। ये बहुत ही सिंपल मेथड थी। यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपसे गलती होती थी, क्या होती थी, कब यहाँ भी 5 और 4 का एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो दो में ही हमको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसी प्रोसेस करनी नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 and 5 multiply with the 4. So now we get 6/20. इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 3/5 मल्टीप्लाई विद 4। अब यहाँ पे तो ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नंबर नहीं है, तो कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि सब इंटीजर के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई विद 4, 5 मल्टीप्लाई विद 1 ना लिखो तो भी चलेगा। 4 3 12/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई विद 5/3। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विद 5, 2 मल्टीप्लाई विद 3, इट बिकम 5/6। इस तरह से हम सभी मल्टीप्लिकेशन करते थे फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन का डिवीजन है। अब बारी आई डिवीजन की। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3/5 डिवाइड बाय 2/4, 2/6, 2/4 व्हाटएवर, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब यहाँ पे करना क्या देखना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम डिवीजन नहीं करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन नंबर का डायरेक्टली हम डिवीजन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो कि जो ये डिवीजन की साइन है पहले हम उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। वो कैसे होगा, तो कि जो डिवीजन की साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। व्हाट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इट मींस अगर 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/1। 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 5/3। इट मींस कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। इट इज अ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब करना क्या है, तो कि यहाँ पे डिवीजन की साइन को हम सीधा मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और डिवीजन के जस्ट पहले वाला जो फ्रैक्शन नंबर है उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा 3/5। डिवीजन की साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, और यहाँ पे इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ given fraction, reciprocal of given fraction, it means 7/2। अब ये एग्जांपल पिछले वाले एग्जांपल जैसा ही बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई विद 7, 5 मल्टीप्लाई विद 2। तो यहाँ पे 3 7 = 21, 5 2 = 10। बहुत ही सिंपल थिंग है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई विद 8। अब यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन नंबर ही नहीं है, दिस इज द इंटीजर। तो मैंने 2 मिनट पहले ही समझाया कि एवरी इंटीजर इज फ्रैक्शन नंबर इटसेल्फ। किस तरह से, क्योंकि कोई भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 तो होगा ही होगा। सो एवरी इंटीजर इज द फ्रैक्शन नंबर।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 की जगह पे हमें क्या लिख लिया, 8 था, तो 8 की जगह पे हम डिवाइड बाय में 1 लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज द डिवीजन साइन। 3/4 डिवाइड बाय 8, तो 8 का रेसिप्रोकल होगा 3/4। डिवीजन की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 8 का रेसिप्रोकल होगा 1/8, क्योंकि 8 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। सो नाउ वी मल्टीप्लाई 3 1 जा 3/8 4 जा 32। अंडरस्टूड और नॉट? अगर फ्रैक्शन नंबर ही है तो उसका रेसिप्रोकल तो इजीली मिल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर डिवीजन में कोई इंटीजर है तो इंटीजर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 गिवन इंटीजर। अगर आगे कोई इंटीजर है, मतलब 5 डिवाइड बाय 2/3, तो 5 एज इट इज ही रहेगा, 5 इट मींस 5, और डिवीजन की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 it become a 3/2. now multiply with 5, multiply with 3/2, 15/2। ये हमारा पूरा हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह से हम डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन नंबर का। कोई भी डिवीजन का टर्म होगा, एग्जांपल होगा, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन नंबर है वो फ्रैक्शन नंबर को हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल ऐसे लिख लीजिए, और ये विद साइन समझने के लिए डिवीजन की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन रखेंगे, और बाद वाला टर्म है तो बाद वाला टर्म का हम रेसिप्रोकल रखेंगे। दो चीज माइंड में होनी चाहिए जब आप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हो तब, तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है, और साइन के बाद वाले टर्म को रेसिप्रोकल में हमें कन्वर्ट करना है। बाद में मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल क्लियर करना है। ठीक है।